Hey all, welcome back to my channel. So today I have brought a video on NTA UGC NET previous year question paper November 2020. So we will be discussing the next five questions from that question paper in computer science and applications. So if you are not watched my part 2 and part 1 videos, you can find it in the description box. Do watch it. And the questions are solved with solution well explained and also your concepts getting clear. So let's together prepare for the coming exam every alternate day. You can watch them, learn them, solve and qualify. These videos are going to be really helpful to you for not only solving the 5 questions which I discussed in the video, but also to solve a similar kind of questions whenever you face them. Okay, so the first question for the day is: consider a high-level page table system with a page table stored in the memory. If the hit rate of TLB is 80%, it's taking 15 nanoseconds to search the TLB, 150 nanoseconds to access the main memory, then what is the effective memory access time? If you see the question papers of NET, this effective memory access time wala question mostly comes. So how to solve such kind of questions? Before solving the question, let's know some of the terms. Okay, so what is the concept of paging? It's a kind of memory management technique. Okay, so in this memory management technique, we actually divide the logical address space, logical memory and the physical memory. So the physical memory is divided into frames and the logical memory is divided into pages. So पेज टेबल क्या है? पेज टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है विच विल मैप योर पेज नंबर्स एंड फ्रेम नंबर. सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एक लॉजिकल मेमोरी है जिसमें पेजेस है, ये फिजिकल मेमोरी है जो हमारा डिवाइडेड है फ्रेम्स में. यहाँ पे पेज टेबल है जो ध्यान देगा हमारे पेज नंबर का भी और फ्रेम नंबर का भी. ठीक है, मैपिंग करना है ना इसको. तो ये जो सिंगल लेवल पेज टेबल सिस्टम है, ये क्या करेगा? it will treat this page table like an array itself. Okay, it's a data structure. So ith entry in array will give you the frame number. This is third entry in the array is giving me the frame number 7 in which that ith page is stored. तो frame number 7 पे कौन सा पेज स्टोर है? ith पेज. यानी थर्ड एंट्री देख रहे थे तो पेज कौन सा स्टोर है? पेज 3 स्टोर है. जैसे अगर आप ये 2 देखोगे तो 2 पे कौन सा फ्रेम नंबर स्टोर है? 3. तो आप जब 3 पे जाओगे तो आपको कौन सा पेज मिलेगा? पेज 2. जैसे आप 1 को देखोगे तो ये 1 एंट्री है, राइट. सो पेज 1 कहाँ पे स्टोर होगा? फ्रेम 4 पे. तो आप फ्रेम 4 पे जाओ, पेज 1 स्टोर है. तो ये एक सिंगल लेवल पेज टेबल सिस्टम है. और भी है, हायरार्कियल है, हैश पेज टेबल्स है, इन्वर्टेड पेज टेबल है. ओके, नाउ व्हाट इज़ TLB? क्योंकि हमारा अभी क्वेश्चन TLB हिट पे है. सो TLB क्या है? इट्स ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर. It's a very high speed memory device. Okay, it works like a memory cache. It is actually used to reduce the time taken to access the memory location. So whenever a memory access is to be made, this high speed device will help you at that. Now what is TLB hit and TLB miss? See, again a diagram is there like this. Our CPU is there which is containing the logical addresses, क्योंकि logical address CPU generate करता है. ठीक है, तो फिर अभी लॉजिकल एड्रेस में ये जो P है ये पेज नंबर है और ये पेज ऑफसेट है. यहाँ पे आप देखोगे ये फिजिकल मेमोरी के यहाँ पे ये फ्रेम नंबर है और ये फ्रेम ऑफसेट है. ठीक है, तो ये यहाँ पे TLB है. दिस TLB इज कंटेनिंग पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर. ठीक है, तो फिर रेफरेंस होता है, पेज नंबर से फ्रेम नंबर मिलता है और डायरेक्टली एक्सेस मिल जाता है फिजिकल एड्रेस का. लेकिन अगर यहाँ पे वो फ्रेम नंबर नहीं मिला, TLB में फ्रेम नंबर नहीं मिला, तो वो फ्रेम नंबर ना पेज टेबल से जाके लेंगे और फिर जाके मेमोरी लोकेशन को एक्सेस मिलेगा. मतलब कि TLB मिस हुआ क्योंकि TLB में वो पेज फ्रेम नंबर हमें मिला नहीं. तो TLB हिट क्या है कि इफ़ रिक्वेस्ट एड्रेस, सो TLB हिट क्या है? इफ़ रिक्वेस्टेड एड्रेस इज प्रेजेंट इन TLB, then it will be yielded and the physical address will be taken and it can be used to access the main memory. But अगर ऐसा TLB के अंदर अगर एड्रेस नहीं मिल पाया तो वो पेज टेबल से जाके एड्रेस लेगा और फिर बाद में फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करेगा. तो वो होता है TLB मिस. तो आपको TLB हिट और TLB मिस भी पता चल गया.
हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम. ओके, सो सिंपल फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना है. एच मतलब हिट रेशियो ऑफ योर TLB, एम इज़ ए मेमोरी एक्सेस टाइम एंड TLB एक्सेस टाइम. ओके, जब भी देखो, जब भी ना TLB हिट होगा तो इसमें क्या टाइम लगेगा, एक तो TLB को एक्सेस करने का टाइम और एक मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम. और जब भी TLB मिस होगा तो TLB एक्सेस करेंगे नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें वो फ्रेम मतलब TLB एक्सेस टाइम लगा, फिर वो टाइम लगेगा पेज टेबल से फ्रेम नंबर निकालने को, तो वो एक अलग टाइम लगेगा, फिर मेमोरी एक्सेस करने को जो टाइम लगेगा वो और अलग. ठीक है, तो उसके हिसाब से ये इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का फॉर्मूला बनाया हुआ है सो करने का. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. ठीक है, सो ये देखो, H इंटू हिट रेशियो इंटू T प्लस एम यानी TLB एक्सेस टाइम प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम. क्योंकि अगर हिट हुआ, TLB हिट हुआ तो क्या लगेगा, TLB एक्सेस टाइम प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम लग जाएगा. प्लस अगर TLB मिस हुआ तो वो कैसे पता चलेगा, रेशियो है तो 1 माइनस H करके, और इंटू T प्लस 2M यानी कि TLB एक्सेस टाइम तो लग ही रहा है, और 2M क्यों, क्योंकि 2 बार मेमोरी एक्सेस, एक तो पेज टेबल से रेफरेंस पेज टेबल में जाके फ्रेम नंबर लेने के लिए, और फिर बाद में वो फ्रेम नंबर मिलने पे अपना फिजिकल मेमोरी में जाने के लिए, इसके लिए वो 2M ऐड किया हुआ है. सो ये फॉर्मूला है सिंपल, देखो H इंटू दैट इज हिट रेशियो इंटू TLB एक्सेस टाइम प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस 1 माइनस H दैट इज TLB मिस हुआ तो TLB एक्सेस टाइम तो लगेगा ही, लेकिन काम भी डबल हो जाएगा, तो समझ लो कि 2M. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 80% बोला, 80% यानी कि 0.80 इंटू T प्लस M, सो दैट इज़ 15 नैनो सेकेंड्स टू सर्च फॉर TLB एंड 150 फॉर मेमोरी, ये लिखा, प्लस 1 माइनस H मतलब 1 माइनस 0.80, तो ये हो गया 0.20 इंटू 15 प्लस 2M दैट इज़ 2 इंटू 150 दैट विल कम 300. तो चलो मैं ये सॉल्व कर लेती हूँ फटाफट. ये हो गया 165, ये हो गया 0.20 इंटू ये हो गया 315. ठीक है, सो मैं ये लिख रही हूँ ताकि जस्ट सिंप्लीफाई कर सके हम इसको. 5 21 सा 5 सा 5 6 सा एंड 3 सा 63 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे से 165 इंटू 8 आई विल डू 165 इंटू 8 04 carry 13 and upon 10 that is 132. So I'm getting here 132 plus 63, so I will do it 591, so 195. So the answer is 195. बिंदास आप अभी इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम के क्वेश्चंस ये फॉर्मूला पे बेस कर सकते हो. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि TLB हिट क्या होता है, TLB मिस क्या होता है, मेमोरी एक्सेस टाइम क्या है वगैरह. ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the following UML diagram has a static view? See, so UML diagrams is unified modeling languages, so that we use in software engineering. So the diagrams have static view as well as dynamic view. So out of this 4 option, which is the correct one? The correct one is option 2, use case diagram. Abhi why this use case diagram is there? Because it captures only the functionality of system. Yes, it is not capturing the actions that are happening within the system, just functionality जो है वही कैप्चर कर रहा है, इसके लिए इसका स्टैटिक व्यू है. whereas आप बाकी सब के लिए देखोगे तो कहीं ना कहीं एक्शंस भी कैप्चर किया हुआ होगा डायग्राम के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे UML डायग्राम जिसका स्टैटिक व्यू है वो है यूज केस डायग्राम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर बाय रीस्ट्रक्चरिंग is called. So modifying, see whenever I say modifying the software, it means that maintenance हो रहा है, right? है ना, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मेंटेनेंस हुआ, यानी कि we need to modify the software, keep on checking the software even after the software is delivered to the customer. So there are 4 types of maintenance.
The first one is adaptive maintenance. What do I mean by adaptive maintenance? It's to make a software more adaptable. It may be to make more adaptable to the new environments, maybe to the new OS is there, or to the hardware side. According to the hardwares, I need to adapt the software, or maybe because of the new cloud storages, I will have to adapt, or some software dependencies. So that is called as adaptive maintenance. When I say corrective maintenance, the word itself says corrective. Corrective means I need to fix the errors. I need to fix the errors, correct the errors, and thereby maintain it. Perfective maintenance, so it means that whatever changes you are bringing, or whatever maintenance would be there, that would be because of evolution of some requirements, or you need to add some new features or functionality to the software. So that is what is perfective maintenance. When we talk about preventive maintenance, what does it mean? Preventive, we need to prevent what? We need to prevent errors, we need to avoid the errors, and also we should be taking care that while adapting and changing, the software quality is not getting deteriorated, right? So that is what is we take care in preventive maintenance. So our question is modifying the software by restructuring. So restructuring, including new features, yes, doing evolution to it, evolution of requirements and all. So that is actually the perfective maintenance. So the correct answer is perfective maintenance in this case. तो आपका यहाँ पे perfective maintenance आंसर है, ये भी पता चला, उसके साथ ही बाकी चारों maintenance क्या होते हैं ये भी पता चला. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, सो दिस इज अगेन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्वेश्चन. सी दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्वेश्चंस अगर आपको पता चल जाए ना तो यू कैन स्कोर एट दिस क्वेश्चंस, दे आर नॉट दैट हार्ड. ओके, सो चलो हम डिस्कस करते हैं. अ कंपनी इज हैविंग अ चॉइस ऑफ 2 languages L1 and L2 to develop a software for their clients. Okay, so the LOC, that is the lines of code that will be required to develop an application in language 2 is twice the LOC in language 1, and the software needs to be maintained for next 10 years, and various parameters are listed below like this. So the parameters for the language 1 are here, and the values for the parameters for language 2 are written here. Okay, so the man year needed for the development is LOC per 1000. This is also LOC per 1000. The development cost is given, and the cost of maintenance per year is given. What they are saying कि total cost of project will include the cost of development and maintenance. इन दोनों को include करेंगे तो total cost of project रहेगा. ठीक है, अब क्या बोला है? What is the LOC for L1? LOC of L1 you will have to find, lines of code for L1 you will have to find, for which the cost of developing the software with both languages must be same. Cost will be same, लेकिन lines of code कितना लगेगा L1 के लिए? Cost of developing the software would be same, और cost of developing the software will include what all things? Development cost as well as cost of maintenance. तो चलो हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन. अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा मिनिमाइज कर दिया, थोड़े क्वेश्चन को छोटा कर दिया. तो चलो मैं पहले क्या करती हूँ, LOC ऑफ L1 लैंग्वेज का ना x ले लेती हूँ, और LOC ऑफ लैंग्वेज L2 क्या होगा? 3x होगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है ना L2 is thrice the LOC in language L1, इसके लिए 3x हो गया. Cost of project is same whatever languages you use. So cost of project using L1 and cost of project using L2 will be what? Both same. Okay, so ये same है, चलो ठीक है. But cost of project L1 क्या include कर रहा है? Development cost include कर रहा है और maintenance cost include कर रहा है, राइट? और ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ L2 क्या यूज़ करेगा? डेवलपमेंट कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इंक्लूडेड रहेगा. इसमें किसका डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा? ऑफकोर्स L1 का आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे L1 का लिखते जा रहे हैं. तो L1 का डेवलपमेंट कॉस्ट कितना है? 70,000. सो आई विल राइट 70,000. डन. इनटू व्हाट आई विल बी डूइंग? इनटू आई विल डू x upon 1000. X upon 1000 because LOC I have taken x. So development cost into man year plus maintenance cost देखना है. पर ईयर का कितना है? लाख है, लेकिन कितना ईयर्स लगेगा? 10 ईयर्स लगेगा. सो 10 into लाख कर देंगे.
ठीक है, ये हो गया ये साइड का। अभी ये साइड पे आ जाओ। डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है, L2 का कितना लगने वाला है, 90,000 इज रिटन, 90,000 इंटू LOC 3x अपॉन 1000. ओके, सो डेवलपमेंट कॉस्ट इंटू मैन ईयर यू विल मल्टीप्लाई ईयर, मैन ईयर, तो वो हो जाएगा 3x अपॉन 1000 और प्लस मेंटेनेंस 10 ईयर्स के लिए करना है और कॉस्ट कितना है 40,000. तो अब आप इसको सॉल्व कर लो फटाफट, समझ में आ रहा है ना आपको? सॉरी, ये कट नहीं होगा, यहाँ पे कट हो जाएगा और यहाँ पे कट हो जाएगा. ठीक है, सिंपल है. देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस इज इक्वल. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट किसको इंक्लूड करेगा, डेवलपमेंट कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट को, तो दोनों साइड भी वही है. डेवलपमेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट कॉस्ट इनटू जितना मैन ईयर लग रहा है. ओके, तो दैट इज व्हाट LOC पर 1000, और यहाँ पे LOC पर 1000 ये केस में क्या हो गया x अपॉन 1000. और यहाँ पे मेंटेनेंस कितना लगेगा, क्योंकि 10 ईयर्स के लिए मेंटेन करना है, तो 10 इंटू 1 लाख पर ईयर का मेंटेनेंस मल्टीप्लाई किया, राइट. और वैसे उस साइड भी लिखना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 70x प्लस ये हो गया 10 लाख हो जाएगा, राइट. ये 10 लाख हो गया इक्वल टू ये हो गया है 270x प्लस ये हो गया 4 लाख. यस, ये 4 लाख हो गया. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 270x प्लस 70x उधर जाएगा माइनस 70x, तो योर इट विल कम 200x. एंड दिस 10 लाख में से 4 लाख माइनस हो जाएगा, तो इट विल कम 6 लाख. ओके, इट विल कम 6 लाख. तो 6 लाख अपॉन 200 when I will do, what I am going to get 3,000. I am going to get 3,000. X is 3,000. So X was what? It was LOC of L1. So LOC of L1 is 3,000. That is option 3 is your correct answer. अगर क्वेश्चन होता है LOC of L2 तो 3 इंटू 3,000 9,000 होता और फिर 9,000 ऑप्शन में भी होता. ठीक है, तो यहाँ पे चलो हमारा आंसर आ गया 3,000. आई होप अगर ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आए तो आपको समझेगा कैसे करना है. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वॉज एस्टिमेटेड एट 864 फंक्शन पॉइंट्स. फंक्शन पॉइंट होता क्या है, ये एक्चुअली एक मेजर होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, ताकि हम प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस एंड ऑल डिटरमाइन कर पाए. सो यहाँ पे बोला है कि 6% का टीम है, 1% है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए, एक डिज़ाइनर है, 2 प्रोग्रामर है और 2 टेस्टर है. ठीक है, सबका सैलरी दिया हुआ है. सैलरी ऑफ डिज़ाइनर है 70,000 पर मंथ, रिक्वायरमेंट गैदरर का है 50,000 पर मंथ, और प्रोग्रामर का 60,000 पर मंथ, टेस्टर का भी 60,000 पर मंथ. अब एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ टीम इज 12 फंक्शन पॉइंट पर पर्सन को 12 फंक्शन पॉइंट्स डिलीवर करना है हर मंथ में. सो व्हाट इज द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड दिस ह्यूज अमाउंट्स आर गिवन ओवर हियर. सो हाउ डू वी कैलकुलेट इट, लेट्स गो एंड सॉल्व इट. ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है सो दैट माई राइटिंग वर्क इज गेटिंग रेड्यूस्ड. सो यर द फंक्शन पॉइंट्स आर 864. ठीक है, लिख दिया. रिक्वायरमेंट गैदरिंग पर्सन का सैलरी था 50,000 पर मंथ, डिज़ाइनर का था 70,000 पर मंथ, प्रोग्रामर का 60,000 पर मंथ था, पर यहाँ पे 2 प्रोग्रामर है तो हो गया 1,20,000, और 2 टेस्टर है, हर एक का था 60,000, तो फिर अभी 2 जन का हो गया 1,20,000, राइट. सो अभी टोटल 6 बंदों को एक महीने में कितना सैलरी देना पड़ेगा. सो यर इट इज़ 50 प्लस 70,000 दैट इज़ 1,20,000 एंड ये फिर और 1,20,000, यानी 1,20,000 इंटू 3 कर दिया फटाफट, तो हमको मिल गया टोटल सैलरी 6 बंदों को देना पड़ेगा, वो होगा 3,60,000. ठीक है, चलो इतना एक पार्ट क्लियर हो गया. अभी उन्होंने ये मेन पॉइंट बोला है, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ टीम इज 12 फंक्शन पॉइंट पर पर्सन मंथ. हर एक पर्सन को 12 फंक्शन पॉइंट डिलीवर करना है, तो 6% है तो हर मंथ में कितना डिलीवर होगा फंक्शन पॉइंट, 72. अब टोटल फंक्शन पॉइंट जो प्रोजेक्ट का है वो इतना है, एक मंथ में 72 अगर डिलीवर होगा तो इनको कितना महीना काम करना पड़ेगा. सो लेट्स डू दैट. लेट्स डिवाइड बाई 8. सो आई एम गेटिंग 108. यहाँ पे मिल रहा है 7, फिर 9, यहाँ पे 9 आ रहा है. सो 9 एंड 108 ओके 12.
तो दे विल हैव टू वर्क फॉर 12 मंथ्स एंड 1 मंथ में वो लोग को देने को कितना जा रहा है 3,60,000. तो 12 मंथ्स लगेगा तो टोटल 12 मंथ्स के लिए उनको सैलरी तो मिलते रहना चाहिए ना. तो इंटू 12 कर दो. तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 36 इंटू 12. सो ये हो गया 72 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 36. 2 3 1 कैरी 4 32. सो आ गया हमारा आंसर 43,20,000 देने में जाएगा. चलो चलो फटाफट आंसर मार्क कर लेते. तो हाँ हमारा आंसर है 43,20,000 यानी कि द टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट इज दिस मच. अब आपको समझा होगा ऐसे फंक्शन पॉइंट दिया होगा, सैलरी वाले बंदे दिए होंगे, एवरेज फंक्शन पॉइंट दिया होगा हर पर्सन का और प्रोजेक्टेड कॉस्ट अगर पूछा होगा तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते. चलो आई होप इट वॉज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, डू कमेंट, and if you are not subscribed then please subscribe the channel.